हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आई होप सो यू ऑल आर हेल्दी एंड डूइंग वेल एट योर प्लेसेस। बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो आपका, मेरा और मुझे लगता है पूरी दुनिया का फेवरेट टॉपिक है, क्योंकि वो है फेस्टिव टाइम्स। यानी कि एक ऐसा वक्त जब हमें ब्यूटीफाई होने के लिए कोई रीजन की जरूरत नहीं है, हमें इंजॉय करने के लिए किसी चीज की रुकने की जरूरत नहीं है। हम इंजॉय करेंगे फेस्टिव सीजन को और अच्छा अच्छा खाना भी खाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये तो जानना पड़ेगा कि हमारे पास एटलीस्ट कितने सारे फेस्टिवल्स हैं जिनमें हमें अलग अलग तरीके से सुंदर बनना है, अलग अलग तरीके का खाना खाना है। तो चलिए बच्चों, आज जानते हैं अपने फेस्टिवल्स के बारे में विद आवर एक्सपर्ट। Hello, my dear little shining stars. How are you all? I hope you all are doing really very well. In our today's class, my dear student, we all are going to see the starting of your theme number 3. Okay. And the name of your theme number 3 is Celebrating Life. Okay. And the first chapter under this theme number 3, we are going to see your chapter number 7. And the name of this chapter number 7 is Festive Times. In this chapter, my dear student, we all are going to see about our festivals. Okay? So come with me, let's start the chapter. So I wonder, why do people wear new clothes and eat special food during festivals? So my dear student, here, this child is wondering, then why on every festive occasion we used to wear new clothes and we also eat so many new dishes and sweets specifically. And so for giving the answer of this question, you are going to get a hint, because it is the time to spend time with friends and relatives and enjoy. ये कौन सा टाइम होता है? ये वो टाइम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, जब आप अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हो। ठीक है, तो चलिए अब अपना माइंड को थोड़ा स्ट्रेच कीजिए और देखिए, इशिता एंड ईशान वर एक्साइटेड फॉर दिवाली। दे डेकोरेटेड देयर हाउस विद लाइट्स एंड मेड स्वीट्स विद देयर पेरेंट्स। इशिता और ईशान नाम के दो बच्चे हैं, ये दोनों दिवाली के लिए ना बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। ठीक है, ये दोनों भाई बहन हैं। इन लोगों ने दिवाली पे अपने घर को लाइट से सजाया है और अपने पेरेंट्स के साथ मिलकर मिठाइयां बनाई है। इन द इवनिंग दे लिट दियास। शाम के वक्त इन लोगों ने दिया को जलाया, दियास को जलाया अपने घर में। Their grandmother shared stories about Diwali. Ishita and Ishan visited their neighbors to share sweets and happiness. And in the evening time, my dear students, what happened? Both Ishita's and Ishan's grandmother shared the story behind Diwali, why we used to celebrate Diwali. Okay, and in the evening time, Ishita and Ishan both visited their neighborhood area. Okay, because they wanted to distribute sweets among their neighbors. They felt joyful celebrating with family and friends. और उन लोगों को ऐसा करके बहुत अच्छा लगा अपनी फैमिली और अपने फ्रेंड्स के साथ फेस्टिवल को सेलिब्रेट करके. Now, my dear students, on the basis of this, you are going to give the answer of these two questions. What is your favorite festival and how do you celebrate? Now you tell me, my dear students, which is your favorite festival? Okay, and in what way you are going to celebrate it? Then second, have you ever helped your family prepare for a festival? What did you enjoy the most? अब आप सेकंड में ये बताइए कि आपने कभी भी अपनी फैमिली को हेल्प किया है फेस्टिवल मनाने में, मीन्स तैयारियों में। ठीक है, आपको कैसा फील हुआ? ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग दोगे। ओके, नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, लेट्स सी, festivals bring us together. Why we celebrate festivals? Because, my dear students, while celebrating festival, we sense the feeling of closeness, togetherness. Okay, because festivals bring all community together. Have you ever wondered why we celebrate so many different festivals? It is because festivals bring us together with our friends and family. कभी आपने सोचा है हम लोग फेस्टिवल क्यों मनाते हैं? क्योंकि फेस्टिवल हम सारे लोगों को, हमारे फ्रेंड्स, हमारी फैमिलीज के क्लोज लेके आता है। ठीक है, वी गेट टू शेयर टेस्टी फूड, वियर न्यू क्लोथ्स एंड हैव सो मच फन टुगेदर। और फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं जब हम लोग, तो हम लोग बहुत सारे टेस्टी टेस्टी खाना खाते हैं, साथ ही नए कपड़े पहनते हैं और बहुत सारा मस्ती और धमाल करते हैं एक साथ मिलकर। ठीक है, लेट अस एक्सप्लोर सम ऑफ द amazing festivals we celebrate in our country. My dear students, now we are going to explore the various, or you can say the numerous number of festivals which we enjoy in our country India throughout the entire year. So the first festival which we celebrate in our country India is Holi, and Holi is called as the festival of colors. Okay,
Holi is the festival where we play with colorful powder and water. Why Holi is called as the festival of colors? Because, my dear student, on the occasion of Holi festival, we all people of India used to play with colorful powders and waters. We laugh, dance and sing with our friends. It is so much fun. होली के टाइम हम लोग खूब सारा मस्ती करते हैं, खूब हंसते हैं, खूब डांस करते हैं, गाना भी गाते हैं, ठीक है। और एक साथ मिलके हम सारे फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स क्या करते हैं, एंजॉय करते हैं। वी ऑल्सो एंजॉय टेस्टी गुजियाज एंड अदर डिलीशियस ट्रीट्स विद आवर फैमिली एंड फ्रेंड्स। और होली में क्या बनता है, कौन सा स्पेशल डिश बनता है, गुजिया बनता है, ठीक है। गुजिया के साथ और भी डिलीशियस ट्रीट्स हम सबके घरों में बनता है, हम लोग खाते हैं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। नाउ द नेक्स्ट फेस्टिवल व्हिच वी सेलिब्रेट इज, but before it we are going to see do it time. Let's see here what you are going to do. It is a special day to celebrate with our friends and family after a month of fasting. ये एक स्पेशल डे होता है जिसको आप लोग मीन्स हमारे इंडिया के लोग एक महीने की फास्टिंग के बाद सेलिब्रेट करते हैं। वी wear new clothes, go to the mosque to prayer and then share a delicious meal together. We exchange gifts and eat yummy sweets like सेवई। यहाँ इस फेस्टिवल में भी हम सारे लोग क्या करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, मॉस्क में जाते हैं, प्रे करते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही स्वीट डिश है सेवई, वो खाते हैं। इस फेस्टिवल का नाम क्या है आप बताओगे? इस फेस्टिवल का नाम है ईद उल फितर। आप यहाँ पर लिखोगे, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईद भी कहते हैं, ठीक है। Now let's see the next festival which we Indian used to celebrate. Okay, that festival name is Christmas. Actually, this festival is based on birthday. Christmas. Let's see Christmas. What's so special about Christmas? Christmas is a special day to celebrate the birth of Jesus Christ. Okay, Christmas is very special festival for Christian community people because it is the occasion of birth of Jesus Christ. We decorate Christmas trees, churches and our homes with sparkling lights and stars. क्रिसमस के दिन हम सारे लोग क्या करते हैं, अपने घर को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं, लाइटिंग करते हैं और साथ ही साथ हमारे घरों में जो भी चीजें हैं उन सबको हम लोग लाइटिंग से सजा देते हैं, ठीक है। We bake tasty cakes, eat delicious cookies and share gifts with our loved ones. जैसे होली में गुजिया बनता है, ईद में आप सेवई खाते हो, क्रिसमस में क्या खाते हो, कौन सा ऐसा स्पेशल डिश है, केक, ठीक है। केक बनाते हैं, ठीक है, हम सारे लोग केक बनाते हैं और डिलीशियस कुकीज भी बनाते हैं और खाते हैं। नाउ रियल वर्ल्ड टाइज, लेट्स सी, चेक योर स्कूल डायरी कैलेंडर टू फाइंड आउट द डेट व्हेन क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड। आप अपने स्कूल डायरी के कैलेंडर में चेक कीजिए और ये बताइए मुझे क्रिसमस कब सेलिब्रेट किया जाता है। Christmas is celebrated not only in India but in entire world on every year 25th of December. So here you are going to write 25th of December. After Christmas, now we are going to see the another festival and the name of this festival is Guru Purab. Okay, Guru Purab, a day to remember and celebrate. So what is the meaning of Guru Purab? Let's see. Guru Purab, or you can say Guru Parv, is a special day to remember and celebrate the birth anniversary of the first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji. Guru Purab हम तब मनाते हैं जब, मतलब गुरु पूरब इसलिए मनाया जाता है और ये बहुत ही स्पेशल डे है। इस दिन हमारे पहले सिख गुरु गुरु नानक देव जी पैदा हुए थे, ठीक है, ये उनका बर्थ एनिवर्सरी है। नाउ वी प्रे इन गुरुद्वारास, लिसन टू स्पेशल स्टोरीज एंड एंजॉय अ डिलीशियस मील कॉल्ड लंगर, ठीक है। तो गुरुद्वारा में हम लोग जाते हैं, प्रे करते हैं और वहां पे गुरुवाणी सुनते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ वहां पे एक डिलीशियस मील बनता है लंगर के फॉर्म में, उसको हम सारे लोग एंजॉय करते हैं। वी वेयर न्यू क्लोथ्स, शेयर फूड विद आवर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड हैव सो मच फन। और गुरु पूरब में भी हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, ठीक है, अपने अपने फूड को अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते हैं और बहुत सारा फन करते हैं, ठीक है। नाउ लाइफ स्किल, लेट्स सी, has your family ever donated anything during a festival or another special occasion to help needy people? Write about the things you would like to donate to people who are poor. अब आप मुझे ये बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आपकी फैमिली ने कभी भी फेस्टिवल के टाइम पे या कभी सर्दियों में, ठीक है, स्पेसिफिकली आई एम मेंशनिंग हियर विंटर्स, क्योंकि विंटर्स ऐसा टाइम होता है जब पुअर लोगों को बहुत हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताइए कि आपकी फैमिली ने कभी डोनेशन दिया है इस टाइम पे, ठीक है। तो अब आप लोग ये बताइए कि दिया है, और अगर दिया है तो क्या क्या चीजें दिया है, और कभी अगर आपको मौका मिलता है डोनेट करने का तो आप क्या चीजें करोगे, ठीक है। चलिए, नाउ नॉलेज कैप्सूल, लेट्स सी व्हाट न्यू नॉलेज वी आर गोइंग टू ऑब्जर्व फ्रॉम हियर।
We do not just celebrate religious festival, we also have national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. My dear students, we live in country India, okay? So यहाँ पे हम सब religious festival celebrate नहीं करते हैं, हम national festivals भी celebrate करते हैं. Religious festivals किसी एक community के लोग celebrate करते हैं, लेकिन national festival सारे इंडिया के लोग celebrate करते हैं, ठीक है? जैसे आपका इंडिपेंडेंस डे है, रिपब्लिक डे है और गांधी जयंती है, ठीक है? और इसके अलावा हमारे इंडिया में हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट किए जाते हैं, मतलब जब फसल उगता है, ठीक है? तो देखिए, तो इसमें सबसे पहला नाम आता है पोंगल का, ठीक है? पोंगल आ हार्वेस्ट फेस्टिवल्स, ठीक है? तो पोंगल एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ये सेलिब्रेट कहाँ किया जाता है, चलो देखते हैं. In Tamil Nadu, people celebrate Pongal to thank the sun god for a good harvest and to express gratitude to cows for helping with farming during Muttu Pongal. Muttu Pongal. देखो, तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं पोंगल फेस्टिवल को. पोंगल फेस्टिवल में वो लोग सूर्य भगवान को यानी लॉर्ड सूर्य को थैंक्स देते हैं कि आपकी वजह से हम लोगों को इतनी अच्छी फसल, चावल की खेती स्पेसिफिकली, चावल इतना अच्छा, राइस का कल्टीवेशन प्रोडक्शन इतना बढ़िया हुआ है. साथ ही साथ पोंगल में ये लोग बैलों को भी, मीन्स कैटल्स को भी बहुत स्पेशल थैंक्स देते हैं, क्योंकि इन कैटल्स, अगर कैटल्स नहीं होंगे तो फार्मिंग इज नॉट पॉसिबल विदाउट द हेल्प ऑफ दिस कैटल्स. ओके, सो कहा जाता है मुट्टू पोंगल, ठीक है? पोंगल तो फेस्टिवल है ही है लॉर्ड सूर्य को थैंक्स बोलने का, लेकिन मुट्टू पोंगल में ये लोग कैटल्स को भी थैंक यू बोलते हैं, ठीक है? We decorate our homes with colorful rangolis, wear new clothes and eat a yummy sweet dish called पोंगल, ठीक है? पोंगल एक डिश का नाम है एक्चुअली. देखिए, पोंगल में क्या होता है, हम सब लोग अपने घरों को बहुत ही कलरफुल रंगोली से सजाते हैं, नए कपड़े पहनते हैं और एक बहुत ही यम्मी स्वीट डिश खाते हैं जिसका नाम पोंगल है. सो हियर यू कैन सी माय डियर स्टूडेंट, दिस फैमिली इज सेलिब्रेटिंग पोंगल फेस्टिवल. नाउ डू इट टाइम. सी, this harvest festival is celebrated in Kerala, where people decorate their homes with beautiful flowers decoration called pukalams. अच्छा, ये हार्वेस्टिंग फेस्टिवल आपके केरला स्टेट में सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है? इस दिन लोग अपने घरों को बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर से सजाते हैं जिसको पुकालम्स कहा जाता है, ठीक है? पीपल ईट अ स्पेशल फीस्ट कॉल्ड ओनम साध्य. इस दिन लोग बहुत ही स्पेशल खाना खाते हैं जिसको ओनम साध्य कहा जाता है. They welcome the spirit of King Mahabali for happiness and prosperity and share gifts with their loved ones. और इस दिन ये लोग किंग महाबली, जो एक डीमन किंग थे, यस, हमारे इंडिया में एक ही डीमन किंग है जिनको हम लोग पूछते हैं, वो है किंग महाबली. तो ये केरला के लोग इसको पूछते हैं, ठीक है? केरला के लोग ये फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं. तो अब आप ये बताइए, ये कौन सा फेस्टिवल है? ये है आपका ओनम फेस्टिवल. देखिए यहाँ पे इसका स्पेलिंग में लिखा है ONAM, ओनम फेस्टिवल. ये केरला के लोग सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, ठीक है? नाउ नॉलेज ऑफ इंडिया, लेट्स सी व्हाट अबाउट आवर नॉलेज ऑफ इंडिया. The most widely celebrated harvest festival is Makar Sankranti, which is celebrated all over India on the 14th of January. पोंगल सेलिब्रेट करते हैं तमिलनाडु के लोग, ओनम सेलिब्रेट करते हैं आपके केरला के लोग, बिहू सेलिब्रेट करते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, असम के लोग, ठीक है? लोहड़ी सेलिब्रेट करते हैं, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, हमारे पंजाब के लोग. लेकिन मकर संक्रांति एक ऐसा फेस्टिवल है, ये भी हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है, लेकिन ये सबसे ज्यादा सेलिब्रेट किया जाता है, ये ऑल ओवर इंडिया के लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं 14th of January. आप लोग भी करते होगे ना, बड़ा वेट करते हो मकर संक्रांति का, खिचड़ी खाया जाता है इस दिन और पतंग उड़ाया जाता है, ठीक है? यही है आपका मकर संक्रांति. पीपल ऑफ ऑल एजेस फ्लाई कलरफुल kites often in the shape of birds, animals or other creative designs. कलरफुल काइट्स आप लोग उड़ाते हो. It celebrates the harvest of new crops and people express gratitude to the sun god for a good harvest. तमिलनाडु के लोगों की तरह ही मकर संक्रांति में भी सारे लोग, हम इंडियंस क्या करते हैं, सन गॉड को थैंक्स बोलते हैं कि इनकी वजह से इतनी बढ़िया फसल हुई है, ठीक है? और साथ ही साथ हम लोग इस मकर संक्रांति फेस्टिवल को ऑल ओवर इंडिया में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है? चलिए, so this is all about this chapter. Now come with me, let's see the new word meanings which we have seen in this chapter. होली, होली का क्या मतलब है? Festival of colors. Guru Purab, a festival to remember the birth anniversary of the first Sikh Guru, Guru Nanak Dev Ji. ठीक है? लंगर, a free meal served in Gurudwaras. लंगर क्या है? ये फ्री मील है जो गुरुद्वारा में दिया जाता है. पोंगल, a harvest festival in तमिलनाडु. पोंगल क्या है? एक हार्वेस्टिंग फेस्टिवल है जो तमिलनाडु के लोग सेलिब्रेट करते हैं. रंगोली, कलरफुल पैटर्न्स मेड ऑन द ग्राउंड ड्यूरिंग फेस्टिवल्स. रंगोली क्या है? रंगोली आप
किसी भी शेप का बना सकते हो, किसी भी साइज का बना सकते हो कलर्स का यूज करके ग्राउंड में, ठीक है। Now, my dear students, come with me. Let's see the quick recap of this chapter. Festivals bring people together to celebrate with family and friends. Festival क्या है? Festival जब हम celebrate करते हैं तो हम अपने friends, अपनी families के बहुत ही close आते हैं. Holi is the festival of color where people play with colored powder. होली क्या है? होली फेस्टिवल ऑफ कलर्स है जहां पे कलर्ड पाउडर से लोग एक दूसरे के साथ होली खेलते हैं. क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड एज द बर्थडे ऑफ जीसस क्राइस्ट विद केक्स एंड गिफ्ट्स. ठीक है, क्रिसमस क्या है? क्रिसमस जीसस क्राइस्ट का बर्थडे है, ठीक है, जब जो हम लोग सेलिब्रेट करते हैं केक खा के. पोंगल इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल इन तमिलनाडु टू थैंक द सन गॉड. पोंगल तमिलनाडु का फेस्टिवल है जो सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड सूर्य को थैंक्स बोलने के लिए. मकर संक्रांति इज अ फेस्टिवल वेयर पीपल फ्लाई कलरफुल काइट्स इन द स्काई. मकर संक्रांति 14 जनवरी को हर साल सेलिब्रेट किया जाता है. इस टाइम हम लोग कलरफुल काइट्स उड़ाते हैं, ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट द चैप्टर. नाउ कम विद मी एंड लेट्स सी द एक्सरसाइज पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. So first of all, my dear students, what we are going to do, tick the correct option. So first of all, we are going to put a tick on the correct option. Like we play with colors and water during Holi or Pongal. During Holi celebration, we decorate Christmas trees and share gifts on Eid or Christmas. Then a special meal called as langar is distributed on Guru Purab, Makar Sankranti. Distributed on Guru Purab. Then Pongal is celebrated to thank sun god, rain god, sun god. Now B, state T for true statements and F for false statement. Now we are going to write T for true statements and F for false statement. Holi is also called the festival of colors. True. So write here T. Then people decorate their homes with rangoli during Christmas. Absolutely false. Onam is a harvest festival celebrated in Kerala. True. Then langar is a special meal served in temples during Pongal. False. Now match the following. Holi, festival of colors, so match them. Christmas, birthday of Jesus Christ. Pongal, thanking the sun god. Eid, celebrated after fasting. Guru Purab, birth anniversary of Guru Nanak Dev Ji. Okay, now activity hub. पिक्चर बेस्ड क्वेश्चन, स्टडी द पिक्चर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट एक पिक्चर दिख रहा है आप लोगों को. इस पिक्चर को आप अच्छे से देखिए और उसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन आंसर्स आप करेंगे. पहला है लुक एट द पिक्चर, आइडेंटिफाई द फेस्टिवल शोन इन द इमेज एंड राइट इट्स नेम. तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ये आपका पोंगल. दिस इज योर पोंगल हार्वेस्टिंग फेस्टिवल. Second, what do you see in the picture? Write two things related to this festival. इस पिक्चर में आप क्या देख सकते हो? इसके बारे में आप कोई दो चीज लिखोगे, ठीक है. तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करते हैं? रंगोली बनाते हैं, ठीक है, हम रंगोली बनाते हैं. और दूसरा एक स्वीट डिश होता है पोंगल, हम वो खाते हैं, ठीक है. स्वीट डिश पोंगल हम लोग खाते हैं, ठीक है. चलो, नाउ आर्ट इंटीग्रेशन. मेक अ ब्यूटीफुल ग्रीटिंग कार्ड फॉर एनी फेस्टिवल you celebrate. Decorate it with colors and glitters and write a short message inside. Then give it to your friend to share the joy. आप लोग एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा ग्रीटिंग कार्ड बनाएंगे, ठीक है. किसी भी फेस्टिवल में बनाइए जो आप लोग को सेलिब्रेट करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है. और आप लोग उस ग्रीटिंग कार्ड को ग्लिटर से, कलर से डेकोरेट करोगे, ठीक है. और साथ ही साथ एक बहुत ही प्यारा सा मैसेज भी उसके अंदर आप लोग लिखोगे और वो ग्रीटिंग कार्ड आप अपने फ्रेंड को दोगे फिर, ठीक है. Okay, my dear students, so this is all for our today's class. Okay, in this way we have completed our chapter number 7. In this chapter we have seen a lot of festival which we people of India used to celebrate. Okay, now my dear students, just go thoroughly through this chapter and complete all the exercises. Now I'm taking leave and going to meet with you all in our next class with a new chapter. Till then, you all have to take very good care of yourself. Bye. तो बच्चों, मुझे तो पढ़कर बहुत ही मजा आ गया. इतने सारे फेस्टिवल, इतना सारा खाना और तैयार होने के इतने सारे रीजंस. तो लड़कियों को तो ये बहुत ही अच्छा लगा होगा. लड़कों,
आपको भी खाना खाने के लिए तो फेस्टिवल्स पसंद ही होंगे, या फिर होली में रंग उड़ाना हो या फिर दिवाली में पटाखे फोड़ने हो। तो बच्चों, अब हम इस चैप्टर को यहीं एंड करते हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड डे।